first of all, about your technology, which tools and technologies basically you use. Then second point, like what kind of filter basically they are applying in the filter. Second point, how many years of experience do you have. Third point, your notice period. And fourth point, your salary package. So salary package वो थोड़ा निग्लेक्ट करते हैं, बट ये थ्री फिल्टर्स कंपल्सरी दे आर अप्लाइंग टू यू. Now the point over here is, if you are not uploading and if you are not creating, if you are not updating the proper content on where guys, on the particular resume, I mean to say on the particular Naukri profile, Naukri.com, or we can say that LinkedIn profiles or many job, whatever job portals we have, if you are not uploading and if you are not adding the proper content, then it could be a chances you are going to miss in the whatever HR applying filters for you guys. वहां पे आप मिस हो जाओगे, and that is why compulsory we must need to take up precautions while creating of the Naukri profile. Okay. All right. So before starting this lecture, I would like to ask you a few questions, or like I'm opening this house forum questions. Do you have any question, like what kind of problem, difficulties you are facing right now? कोई है किसी को कोई प्रॉब्लम डिफिकल्टी फेस हो रही है while creating and profiles on the naukri.com? किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? No, sir. नो. ऑलराइट. सो हम आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न कि बेसिकली हमारी जो नौकरी प्रोफाइल होती है, वो नौकरी प्रोफाइल बेसिकली किस तरह से होती है, क्या हमें क्या क्या कंपोनेंट्स बेसिकली वी हैव टू ऐड गाइस. ओके. अब जैसे कि just a minute. Okay, let me share my screen to all of you. Sorry. Let me know once you can able to see my screen, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. Okay. So about like now here we are going to learn कि basically आपके resume में क्या क्या होना चाहिए. First of all, like whenever you created the resume, अब जैसे कि right now I have a resume. This is my resume basically, and I hope आप सभी का resume properly created है. But फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि exactly resume में क्या क्या ऐड करना होता है, क्या क्या नहीं. Okay. So see guys, your resume like basic summary होनी चाहिए कि what exactly you are doing, क्या किया है आपने, like about your graduations, about your contact number, objective, and जो भी job experience है. Like what I am assuming, जितने भी लोग यहाँ पे है, those people are mostly like they are going to show some kind of experience basically. तो क्या क्या आपने किस टेक्नोलॉजी पे काम किया वो प्रॉपरली आपको हाईलाइट करना है. जो टेक्निकल स्किल्स है वो प्रॉपरली यू हैव टू हाईलाइट ओवर देयर. ओके. जो भी है, जैसे कि लाइक यू हैव टू मेंशन, जैसे कि I'm specifically talking about the automation area guys. Like these things are not applicable to automation only, these things applicable to जो भी डेवलपमेंट वाले हैं, जो भी सेल्फोर्स वगैरह, जो भी टेक्नोलॉजी वाले हैं, whatever technologies you are choosing for an work, उन सभी के लिए these are the primary things basically we have. Okay. About your name, crystal clear, like your name, what is your current position, about your educational background, you must need to clearly define over here like this. About your job experience, exactly आपने जो job experience है, आपने आपने कहाँ पे क्या काम किया है basically, that you must need to show over there. Once this is done, whatever technical skill set you are having, that technical skill set you must need to define over here. Like you are like which programming language mainly you are using, like आपने Java use किया होगा for automation, you have to mention that Java language. Then about the testing framework, you know about the data driven testing framework, you have to mention those things. Built-in tool, you know about the Maven, you have to mention those things. CI/CD pipeline tool के बारे में, if you know about the Jenkins tool, you have to mention this thing. So these are the tools and technologies basically you have to use guys. ये सारे tools technologies you have to mention. ये compulsory होता है. Once this is done, which database you are working, like अभी रिसेंटली हमने डेटाबेस का भी लेक्चर्स कंडक्ट किए थे. आप सभी को पोस्टग्रेस एसक्यूएल वहां पे मेंशन करना है. दिस कुड बी द एडेड एडवांटेज फॉर यू गाइस. ओके. आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज do practice on that postgres, and this is not applicable to like I mean to say
automation testing engineers, this is applicable to Salesforce as well. If you are using any database, if you can watch, if you can use, you can mention that database in your resume. If you are not, if you don't know about a database, just follow my like जो भी lectures है, those you can follow over there. Yeah, Ravi Kiran, do you have any questions? You want to say something? No, sir. No? Okay. No. All right. So these are the technical skills you have to mention over there. Once this is done, what kind of job experience basically you are having, your company name, your designation, job title, which tools, technologies basically you used over there, that thing you have to mention, and your roles and responsibility you have to mention. And जो भी आपके academics है, that basically you have to mention the things over there. So this is how basically you have to mention, you have to create the resume. And I hope कि आप सभी का resume creation का ऑलरेडी लेक्चर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो यही सेम थिंग यू हैव टू मेंशन ओवर देयर. जिनका नहीं हुआ है, जो मैंने चीजें बताई वही चीजें यू हैव टू मेंशन ओवर देयर. ओके. एंड जो दोज आर फ्रेशर्स जिनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, लाइक दे वांट टू शो एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप ऑफ एक्सपीरियंस. इफ सम ऑफ द पीपल आर फ्रेशर, उनको प्रोजेक्ट नहीं डालना है, ओनली फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यू हैव टू ऐड, बट प्रोजेक्ट कंपल्सरी यू हैव टू मेंशन ओवर देयर गर्ल्स. ओके गर्ल्स गाइस, प्रोजेक्ट कंपल्सरी यू हैव टू मेंशन. अब हम चलते हैं हमारे नौकरी प्रोफाइल की तरफ. ठीक है. तो दिस इज हाउ आवर नौकरी प्रोफाइल इज गाइस. अब नौकरी प्रोफाइल की तरफ जब भी हमें जाना है तो यू मस्ट नीड टू टेक अप लाइक प्रिकॉशंस ओवर देयर. व्हाट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स बेसिकली वी हैव टू ऐड ओवर हियर, क्योंकि कंपोनेंट जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कंपोनेंट्स के. आप क्या कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हो, यू नो वेरी वेल कि आपको हर किसी को आपकी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल पे आपको जाना है. कंपल्सरी आपको कहाँ पे जाना है, आपकी प्रोफाइल पे जाना है. उस प्रोफाइल में यू हैव टू मेंशन योर रिज्यूमे, जो भी है आपके रिज्यूम यू हैव टू मेंशन ओवर देयर. आपका रिज्यूम अपलोड करना है. देन अगेन इंपॉर्टेंट टर्म ओवर हियर, यू हैव टू मेंशन कि आपका रिज्यूम समरी कहाँ पे. ये रिज्यूम समरी तो दिस इज फाइन, but here picture is coming to the picture which is named as a key skill. Exactly ऐसे कौन सी की स्किल है आपके. ओके ऐसे कौन से की स्किल है कि वो की स्किल बेसिकली यू हैव टू मेंशन. अब जैसे कि आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, यू हैव टू मेंशन कोर जावा, सेलेनियम वेब ड्राइवर, जेनकिंस, जीरा, then GitHub, TestNG, API testing tool, then you have to use like these many technologies basically you have to use. These many key skills basically you have to mention over there. ये की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी एचआर कहीं पे फिल्टर अप्लाई करती है, whenever HR applying some of the filters like query filters on the Naukri profile, that time first criteria over there they are applying for an what guys, आपकी की स्किल क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी स्किल्स क्या है. तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपका ये जो है गाइस बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपका कि आपकी बेसिकली की स्किल्स क्या है बेसिकली. ओके व्हाट आर द की स्किल बेसिकली वी हैव, ये यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है. ओके अब यहाँ पे ये जो की स्किल है, ये की स्किल से बेसिस पे ही आप फिल्टर आउट होते हो. तो जो आपकी की स्किल है वो सारी यहाँ पे प्रॉपरली ऐड करना है आपको. ठीक है. वन दिस इज डन, जो भी आपका एक्सपीरियंस है दैट एक्सपीरियंस बेसिकली यू हैव टू मेंशन ओवर देयर. ओके जो भी आपके कंपनी का है, कंपनी का नेम वगैरह वो प्रॉपर फील्ड यहाँ पे फिलअप करनी है. आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड यहाँ पे फिलअप करना है. ओके ये सारी चीजें फिलअप करनी है. देन यहाँ पे यू कैन सी गाइस आपकी आईटी स्किल्स में जो आपकी स्किल्स है, कितने साल से आप यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें बेसिकली यू हैव टू मेंशन ओवर हियर. ये सारी चीजें बेसिकली यू हैव टू मेंशन ओवर हियर. अब ये जो है लाइक ये ग्रेजुअली बेसिकली ये अपडेट करना होता है बेसिकली आपको. बट एज ऑफ नाउ जस्ट मेंशन द ऑल आईटी स्किल्स, व्हाटएवर स्किल्स यू आर हैविंग, ये सारी की सारी आईटी स्किल्स आपको मेंशन करनी है. वन दिस इज डन, देन अनदर पार्ट वी हैव व्हिच इज नेम एज अ प्रोजेक्ट. ओके अब प्रोजेक्ट पे आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया था, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बेसिकली यू वर्कड ऑन, क्या क्या इसमें काम किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. जो ये फील्ड्स यहाँ पे आती है जैसे कि एड प्रोजेक्ट, लेकिन से जो यहाँ पे फील्ड्स आती है सारे फील्ड्स यू हैव टू मेंशन करेक्टली ओवर हियर. ऑल फील्ड्स बेसिकली यू हैव टू मेंशन करेक्टली ओवर हियर. देन वंस दिस इज डन, देन जो भी आपके प्रोफाइल समरी है, जो काम आपने किया है वो सारा बेसिकली यू हैव टू मेंशन ओवर हियर इन दिस प्रोफाइल समरी. ओके
जैसे कि मुझे यहाँ पे इतना नॉलेज है, मैंने इतनी टेक्नोलॉजी पे काम किया है, छोटा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यू हैव टू मेंशन ओवर देयर, इट विल रियली हेल्पफुल। कि जब एचआर आप सी आप फिल्टर आउट हो गए, अब एचआर को आपको कॉल करना, तो एचआर कॉल करने से पहले एटलीस्ट आपकी जो प्रोफाइल है ना, एक बार देखती कि भाई इसकी प्रोफाइल समरी क्या है, इसको कितना क्या क्या नॉलेज है। डेफिनेटली वो कॉल करने के बाद भी वही सेम क्वेश्चंस शी और ही are going to ask you guys, but you have to mention these things properly. When this is done, what kind of accomplished basically you did in your academics में हो, या चाहे आपके जो करंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वहां पे क्या क्या अकम्प्लिश किया है, दैट बेसिकली यू हैव टू मेंशन। अब जैसे कि बेसिक अकम्प्लिशमेंट बेसिकली यू कैन मेंशन ओवर देयर, लाइक आई गॉट अ सेकंड प्राइज, और आई गॉट लाइक जैसे कि व्हेन आई वाज इन my academics year, when I was in engineering, that time I got an second prize, नेशनल लेवल का प्राइज मिला था मुझे इन द पेपर रिप्रेजेंटेशन। तो वैसे ही अगर ऐसे कुछ आपके अचीवमेंट्स होंगी, दोज अचीवमेंट्स बेसिकली यू हैव टू ऐड ओवर हियर, जो कि बहुत हेल्प करता है आपके अकम्प्लिशमेंट में। मतलब इन शॉर्ट गाइज, आपकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ा लुक देती है कि एक प्रोफेशनलिज्म डालती है उसमें। ओके, जैसे कि सी आपकी जो फोर व्हीलर जो है मारुति 800 भी फोर व्हीलर आती है, उसमें भी 4 लोग बैठते हैं, और मर्सिडीज होती है उसमें भी 4 लोग बैठते हैं। करेक्ट गाइस, द पॉइंट ओवर हियर इज लुक कैसा है, प्रीमियम फीचर्स कितने हैं। तो ये सारी चीजें जो है जो आप ऐड करते हो, ये आपके प्रोफाइल में प्रीमियम फीचर्स ऐड करते हैं। ठीक है, एनीवेज आपकी मारुति सुजुकी भी उतना ही एवरेज देती है उससे, और ये भी जो मर्सिडीज है वो भी उतना ही एवरेज देती है। दो ना इधर उधर थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, बट जितना आप एडिशनल कंटेंट यहाँ पे ऐड करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इट विल रियली हेल्पफुल फॉर एन एचआर एज वेल टू फिल्टर आउट योर प्रोफाइल। ओके, जितना ज्यादा इन डेप्थ आप ऐड करोगे उतना अच्छा आपको रहेगा। वंस दिस इज डन, then you can see guys whatever career profile you are having, those career profile you are going to create over here. Ab guys, one more thing I would like to highlight over here. Ab here you can see guys, I have specifically mentioned over here preferred location, which is named as a Pune. This is a preferred location basically we have. Ab I don't know कि how many people are ready about my concepts, जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ इसके रिलेटेड कितने लोग यहाँ पे एग्री होते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ एचआर जो होते हैं, दे आर अप्लाइंग द फिल्टर फॉर लाइक व्हाट काइंड ऑफ टेक्निकल स्किल्स having of that particular candidate. This is the first filter. Second filter they are using for how many year of experience, and third filter they are using, which is named as what guys about the notice period, how he or she is immediately available. ऐसे तीन फिल्टर कंपलसरी होते हैं। बट कुछ एचआर जो होते हैं वो कंपलसरी जो लोकेलिटी होती है, जो सिटी वाइज भी कैंडिडेट सर्च करते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मुझे किसी ने बोला कि you are having a offer, you are having a offer like 50 lakh का ऑफर है, एंड यू वांट टू ज्वाइन इन अ चेन्नई लोकेशन, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। हाँ, 1-2 CR का अगर होगा दैट टाइम आई विल थिंक, बट अगर ऐसा छोटा मोटा ऑफर अगर होता तो दैट टाइम आई विल रिजेक्ट दैट पार्ट। सो मेन पॉइंट ओवर हियर इज, कुछ एचआर जो होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे जो एचआर होते हैं, वो प्रेफर्ड वर्क लोकेशन भी प्रॉपरली सर्च करते हैं लोकेशन वाइज। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, यू कैन क्रिएट टू डिफरेंट डिफरेंट नौकरी प्रोफाइल एज वेल। वन फॉर पुणे लोकेशन, सेकंड इज फॉर मुंबई लोकेशन, थर्ड इज फॉर बैंगलोर लोकेशन। ऐसे 3 अलग अलग नौकरी प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ अलग अलग आपको ये डालना है, फोटोज अपलोड करना है, एंड ऑल टेक्नोलॉजीज जो भी पॉइंट है वो आप एज इट इज रख सकते हो। बिलीव मी गर्ल्स एंड गाइज, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री। बहुत सारे एचआर से आपको कॉल आएंगे। द थिंक ओवर हियर इज, आपको बैंगलोर पे जहां पे रहते हो वहां के प्रॉपरली एड्रेस डालना है आपको। अगर पुणे का तो आपको सभी को पता है, और मुंबई का जहां पे कोई तो भी एक लोकेशन का वहां पे एड्रेस डालना है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे प्रेफर्ड लोकेशन वर्क लोकेशन, यू कैन ऐड ओवर हियर मल्टीपल लोकेशन एज वेल। यहाँ पे आप मल्टीपल लोकेशंस भी ऐड कर सकते हो। बोथ द वेज आर फिजिबल, बट इट कंप्लीटली डिपेंड कि अगर आपकी सेपरेटिव प्रोफाइल होती है उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए तो वो ज्यादा प्रेफरेबल होती है। तो एक करियर प्रोफाइल करके ये आपको सारी चीजें ऐड करनी है। ओके, ओके, जस्ट गिव मी मिनट गाइस। Okay, so this is the main thing we have.
अब one more thing I would like to tell you over here about this preferred work location. Okay, preferred work location में हो सके उतने ज्यादा जो मेन सिटीज है उनकी सेपरेट प्रोफाइल क्रिएट कर लो, और यहाँ पे प्रेफर्ड वर्क लोकेशन में हो सके उतनी ज्यादा प्रोफाइल, उतनी ज्यादा सिटीज ऐड करो. जैसे कि नोएडा इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी हब. नोएडा है, देन चंडीगढ़ है, देन आपका मोहाली है, देन वी हैव पुणे, मुंबई, नाउअडेज अहमदाबाद इज आल्सो ग्रोइंग सिटी. उसके बाद इंदौर, आजकल इंदौर भी बहुत ग्रोइंग, मतलब अच्छा खासा बढ़ गया आईटी इंडस्ट्री वहां पे आपका. यू कैन चूज फॉर एन बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद. ये जो टॉप सिटीज है आपके 10-15 सिटीज, वो सारी यहाँ पे यू हैव टू मेंशन गाइस. कंपल्सरी यू हैव टू मेंशन. जितना आप यहाँ पे मेंशन करोगे उतना आपके लिए ज्यादा फिजिबल होगा. ओके, उतना ज्यादा आपको फिजिबल होगा. यू हैव टू चूज द लोकेशन वाइजली गाइस. ओके, once this is done, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है, यू हैव टू मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स ओवर हियर. एंड दिस इज हाउ बेसिकली वी कैन क्रिएट द, you should create the IT profile. One more thing I would like to tell you here, the notice period. Here the notice period is again plays a major role over here. Now what, like, why and how basically your notice period plays the major role. कंपनी को वही कैंडिडेट चाहिए होता है जो जल्दी मिले, जो जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन कर ले उनके प्रोजेक्ट के लिए. तो अगर इफ यू आर सिलेक्टिंग योर जो भी है आपका नोटिस पीरियड, यहाँ पे 15 डेज और लेस, और 15 पीरियड और लेस नोटिस पीरियड, जैसे अगर आप ये कंपोनेंट ये डालते हो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉल फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री. बहुत सारे कॉल्स मिलेंगे आपको, बिकॉज मुझे जहां तक पता है कि आप सभी लोग इमीडिएट अवेलेबल है. ऐसा कोई नहीं कि सब किसी का नोटिस पीरियड 2 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, ऐसा कोई नहीं. यहाँ पे सबका नोटिस पीरियड इमीडिएट अवेलेबल है. करेक्ट ना गाइस? सबका वैसा ही है ना? यस सर. Yes, sir. क्या आशीष? 2 months. My notice period is 2 months. Okay, so 2 months you are having a notice period now, but I'm requesting Yes, to you, sir. I'm recommended to you, please mention this thing only, क्योंकि if you are having a 2 months of Okay. notice period, then you will get a very hard बहुत कम इंटरव्यूज के चांसेस आपको मिलेंगे. ओके, तो एज ऑफ नाउ, Okay. as of now just mention the things over here, 15 days and less notice period. ओके, और शायद से आपको पैकेज कितना दिखाना है ये ऑलरेडी आपको बताया गया होगा. दैट पैकेज बेसिकली यू हैव टू डिफाइन ओवर हियर, एंड देन दिस इज हाउ बेसिकली वी हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल. क्लियर ना एवरीवन, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है सबको? किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? So, सर अगर हम डिफरेंट लोकेशंस का अगर करते हैं तो हमें अगर कॉल आता है अगर कोई एचआर का, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन से लोकेशन के लिए आया है? वो बताते ही ना शोभा आपको कौन सी लोकेशन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी वैसे, और वो आपको बड़े आराम से पूछती भी है कि आर यू इंटरेस्टेड टू रिलोकेट. वो पूछते भी है आपको शोभा. अच्छा ठीक है सर, थैंक यू. तो सबको क्लियर है अबाउट द नौकरी प्रोफाइल? Yes sir. Yes, sir. किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? हेलो सर. यार रविकिरण, तो मेरा एक डाउट है सर. एक्चुअली अभी जो प्रोफाइल रहता है सर, उसके मतलब फर्स्ट पेज पे रखने के लिए क्या करना पड़ता है सर? जैसे टॉप पे, जैसे मैं जैसे मैं एक यूज कर रहा हूँ, जैसे फॉर्मेट, जैसे मॉर्निंग में 8-9 AM को मैं अपडेट करता हूँ प्रोफाइल को, तो उसके वजह से ना तो कॉल आते हैं सर, डेली अपडेट करता हूँ. वेरी गुड. आप व्हाट्सएप कितने बार ओपन करते हो रविकिरण दिन भर में? 10-20 बार. कितने टाइम इंटरवल के बाद आप व्हाट्सएप ओपन करते हो? इंटरव्यू के बाद? नो, कितना टाइम इंटरवल के बाद? लाइक 5 मिनट्स के बाद, 10 मिनट्स के बाद, 15 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के बाद, कितने मिनट के बाद आप व्हाट्सएप ओपन करते हो? अभी तो 2-4 महीने से ज्यादा, 7-8 बार. नो, टेल मी ऑनेस्टली. वैसे मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ आपके, ठीक है? नो नीड टू. जहाँ जी मैं क्योंकि मैंने भी क्योंकि जब अपना क्लास का ही रहता है ना सर, मैं जहाँ से क्लास स्टार्ट किया है ना, तब से मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है व्हाट्सएप. उसके पहले लाइक 15 मिनट्स 20 मिनट्स के बाद तो आप ओपन करते हो? 20-35 बार किया बस. So what exactly you have to do guys on daily basis, at least after 1 hour
जस्ट अपडेट योर प्रोफाइल। अपडेट में Okay. क्या करना है, सिंपल, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, जैसे कि दिस इज माय प्रोफाइल वी हैव, सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओके, एंड सपोज दिस इज अ प्रोफाइल बेसिकली वी हैव, यहाँ पे कोई तो भी ऐड करो, सेव करो, ये भी इस तरह से भी आपकी अपडेट हो गई। नहीं तो ये जो आपके रिज्यूम हेडलाइन है, यहाँ पे कोई तो भी मैं मतलब like this you can choose the thing over here and you can see your resume headline has been successfully saved. It means आपका जो रिज्यूम है वो प्रॉपरली फिर से अपडेट हो गया है, आपका जो रिज्यूम है वो प्रॉपरली फिर से अपडेट हो गया है। Okay. सो दिस इज द थिंग बेसिकली भी आप, तो इस तरह से आप आपके, और ये जो है दिन भर में कम से कम 8-9 बार करना है आपको, ठीक है, ये आपको 8-9 बार करना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटेजी आपका जो है नौकरी का जो प्रोफाइल होगा वो हमेशा टॉप पे रहेगा, ठीक है, अंडरस्टूड? जी राइट सर। ओके, आपको रियलाइज होगा, मतलब आप 8 दिन तक करो मत अपडेट, आपको बहुत लेस कॉल आएंगे, और अगर दिन भर में आप 6-7 टाइम्स आप अपडेट करो, यू विल गेट एटलीस्ट 2-3 कॉल्स तो 100% आएंगे गाइस, करेक्ट और नॉट? जी राइट सर, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में अपडेट नहीं किया ना सर, आज एक भी कॉल नहीं आया, क्योंकि कल मैंने किया था मॉर्निंग में 2-3 बार और दोपहर को भी, तो कॉल आए थे सर। तो रवि किरण, टुडे वी हैव अ सैटरडे, आईटी को छुट्टी रहती है। एक्चुअली सर मैं ट्रैवलिंग में था ना, तो एक्चुअली अभी लैपटॉप। ओके ओके, ऑलराइट, तो सबको क्लियर है अबाउट दिस? किसी को है Yes. कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? सर एक्सपेक्टेड सैलरी में कितना मेंशन करने का, या कुछ फिर नहीं, कुछ नहीं, जो मिल जाए वो बस दुआ मान लेना, कोई टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ एंट्री मिल गई तो भी बात ठीक है शुरू में, बाद में यू कैन लाइक यू विल गेट द थिंग्स, नो नीड टू वरी, आपको मिल जाता है, बाद में ग्रो हो जाता है, कोई ओके दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। एक्सपेक्टेड अभी आपका, अगर सपोज अगर आपको सीटीसी कितना बोला है, सपोज आपको बोला होगा कि यू आर हैविंग अ 2 लाख ऑफ सीटीसी एनुअली, 2 लाख का सीटीसी है आपका एनुअली, करेक्ट? अगर किसी ने बोला होगा आपको कि आपको 2 लाख का सीटीसी है, तो एक्सपेक्टेड अगर पूछा ना तो 2.5 लाख, 3 लाख का भी बोला, 3.5, 4 लाख का भी बोला शुरू में, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। इट्स कंप्लीटली डिपेंड कि आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ओके। आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है सारी चीज, ठीक है, क्लियर? यस यस किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? नो सर। नो, ऑलराइट, तो हम चलते हैं अब हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल की तरफ, ओके। सो अबाउट द लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल में हमें क्या करना होता है, ठीक है गाइस? लिंक्डइन प्रोफाइल में बेसिकली यू हैव टू मेंशन द थिंग्स प्रॉपरली, जो भी आपकी चीजें हैं। या भारती को है, टू रेज योर हैंड। सर लिंक्डइन में जैसे प्रोफाइल अपडेट किया है, वहां पर से जैसे कि कोई मैसेजेस आते हैं कि हम जॉब के रिगार्डिंग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वो कैसे ऑफ करना है? क्योंकि 1-2 बंदे के मैसेज ऐसे ही आए थे। नहीं समझा, मतलब भारती मुझे, मतलब आपको ऐसे मैसेज आते हैं क्या आते कि, हैं सर, हाँ मतलब ऐसे मैसेज आते हैं क्या, लेकिन करेक्ट, आपके पास ऐसे। अच्छा तो आने दो ना भारती, अच्छी बात है, अगर ठीक ऐसे मैसेज भी आते हैं तो like, चलो कोई तो मैसेज कर रहा है हमें, कि कोई तो हमें मतलब समझ रहा है कि हाँ भाई ये बंदा या बंदी नहीं सर, ये कर ऑफर निकाला था 4.5 का आया था, हाँ यूनाइटेड एलायंस टेक्नोलॉजी पुणे का जो है ना, वहाँ का। हाँ 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 हाँ, ओके उन्होंने अभी 26 जनवरी दी है ज्वाइनिंग डेट। ओके, कोई दिक्कत। अगर ऐसा आता है तो यू हैव टू मेंशन ओवर देयर, यहाँ पे भी आपको मेंशन करना है, लिंक्डइन पे मैं बताऊंगा, लिंक्डइन पे, बट नौकरी पे भी मेंशन करना, आपको कंटिन्यूसली अपडेट रखना है क्या यू आर हैविंग ऑलरेडी ऑफर फ्रॉम दिस सैलरी पैकेज, और आपका इतना ज्वाइनिंग है, आई एम इमीडिएट ज्वाइनर, तो यू विल गेट अगेन लॉट ऑफ कॉल्स। और अभी शायद से नेक्स्ट वीक से बहुत अच्छा मार्केट ओपन होने वाला है, यू विल गेट रियलाइज इन द नेक्स्ट वीक, अच्छा मार्केट ओपन होने वाला है, क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ओके। ऑलराइट, तो अगेन हम स्विच करते हैं हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे। तो लिंक्डइन प्रोफाइल पे बेसिकली क्या करना है हमें, यू हैव टू क्रिएट योर लिंक्डइन प्रोफाइल वाइजली गाइस, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल आपको जितने कॉल्स आपको नौकरी से आते उतने ही कॉल्स आपको लिंक्डइन से भी आते हैं, इसलिए आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल शुड बी क्रिस्टल क्लियर और अच्छी होनी चाहिए, ओके। सबसे पहले नौकरी हो या लिंक्डइन हो, प्रोफाइल फोटो अपलोड होना चाहिए आपका, ओके, प्रोफाइल फोटो अपलोड होना चाहिए। देन गाइस व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू मेंशन ओवर हियर, कि एग्जैक्टली आपको किस कंपनी में आप राइट नाउ जॉब कर रहे हो,
that thing also you have to mention. Once this is done, यहाँ पे you can see guys open to work, यहाँ पे you can see एक field आती है जो कि कहती है open to work. यहाँ पे you can fill the all things basically over here. Even you can mention जॉब लोकेशंस, और जो भी जॉब लोकेशंस है, भले ही वो ऑन साइड हो या रिमोट. ऑन साइड मतलब बाहर वाले कंट्रीज में, वो भी जॉब लोकेशन यू कैन चूज. वर्क प्लेस जो भी है वो आप सारी चीजें बेसिकली यू कैन चूज ओवर हियर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितने यहाँ पे लोकेशन ऐड करोगे एज ऑफ नाउ, जितने भी आप लोकेशन बेसिकली यहाँ पे ऐड करोगे एज ऑफ नाउ, उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा गाइस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so you have to mention this thing properly. Once this is done, then what exactly you have to do guys, जो भी आपका year of experience है that basically you have to mention properly. जो भी year of experience है that you have to mention, कब ज्वाइन किया था, क्या किया था, और आपको जो है एजुकेशन जो होगा वो आप you can add over there. And the again important point over here is again skill. अब here you can see guys on my profile I clearly mention over here कि मैं exactly क्या करता हूँ, मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ. एक सिंगल लाइन पे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि आई हैव एक्सपीरियंस इन वेब, मोबाइल, एपीआई, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ऑटोमेशन. तो ऐसे सिंगल लाइन में बेसिकली यू हैव टू मेंशन योर एक्सपीरियंस, जो कि जो रिक्रूटर्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं आपको सारे सर्चिंग में. ओके, तो यू हैव टू मेंशन दिस थिंग प्रॉपरली ओवर हियर. एंड वंस दिस इज डन, यहाँ पे यू कैन सी गाइस यू हैव टू ऐड द प्रॉपर स्किल्स ओवर हियर. जो भी स्किल्स है सारे स्किल्स यू हैव टू ऐड प्रॉपरली ओवर हियर. जितना स्किल्स आप प्रॉपरली यहाँ पे ऐड करोगे उतना आपके लिए सबके लिए अच्छा रहेगा. ओके, वन दिस इज डन, हियर यू कैन सी गाइस अगर मैं यहाँ पे शो में मेरी स्किल्स देखता हूँ, यहाँ पे यू कैन सी गाइस दिस मेनी स्किल्स बेसिकली आई हैव, दिस मेनी स्किल नॉलेज बेसिकली वी हैव. जितना स्किल्स आपके पास होगा उतना आपका जो जॉब है वो सिक्योर्ड रहेगा और उतना आपको मार्केट डिमांड ज्यादा रहेगा. सो इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, जो भी करना है प्रॉपर स्किल्स बेसिकली यू हैव टू फॉलो गाइस. ओके, उसके बाद जो भी यहाँ पे टर्म्स कंडीशन है जो भी है, मतलब ये नहीं करना है कि यार ये इतना काम में नहीं है, वो ऐसा रहेगा, वो वैसा रहेगा. डोंट थिंक अबाउट इट गाइस. ओके, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट यूज इट प्रॉपरली. मतलब जो फील्ड्स दिए है, लिंक्डइन हो या नौकरी हो, सारे बेसिकली यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपरली. मतलब सारी चीजें आपको प्रॉपरली मेंशन करना है यहाँ पे. This is how basically you have to provide your what guys LinkedIn की प्रोफाइल. और यहाँ पे you can see guys showcase services you offered. अगर आप कोई रिक्रूटर हो तो that time you have to mention this thing. But अगर if you are not recruiter then you no need to worry about this thing. तो ये सारी चीजें compulsory you have to follow, compulsory you have to write down, compulsory you have to provide on your Naukri and LinkedIn profile. क्लियर है? क्योंकि LinkedIn से nowadays रिक्रूटर बहुत ज्यादा हायर करते हैं, लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. अब यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स आप ऐड करते हो वो कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रॉपरली ऐड करना है. प्रोफाइल क्रिएशन का सबको क्लियर है? लिंक्डइन का क्या करना है, कैसे करना है? यस सर. किसी को है डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? नो, ऑलराइट. इंपॉर्टेंट पॉइंट. हेलो सर. यार रवि किरण, सॉरी सर, एक्चुअली मैंने मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है सर, लेकिन एक्चुअली जो रिलेवेंट कंपनी थी ना, तो उस कंपनी का मैंने ऐड नहीं किया है और अदर कंपनी का जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऐड किया है. और जैसे कि मेरे लिंक्डइन में फॉलोअर्स बहुत है, कनेक्शन. हाँ, तो मैंने अदर कंपनी का ऐड किया ना सर, और पहले कंपनी का उसको रिमूव कर दिया है. तो फिर कोई इश्यू आ सकता है क्या सर? नो, इतना टाइम नहीं है किसी के पास, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स उसमें बहुत सारे हैं, तो इसकी वजह से नो नीड टू वरी, कोई टेंशन नहीं. हाँ, सिर्फ जो अपडेट करते हो आप, वो अपडेट है ना हाइड करके रखो. मतलब वो अपडेट आपकी फीड्स में नहीं जाना चाहिए. जैसे कि फेसबुक का होता है ना, अगर कोई पोस्ट डालते हो आप तो कुछ पोस्ट प्राइवेट होती है, सिर्फ HR मतलब सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही दिखनी चाहिए, ऐसा होता है ना. वैसे ही लिंक्डइन में फीचर होता है, अगर आप कुछ अपडेट करते हो जैसे कि कंपनी, और आपको अदर लोगों आपके फीड्स पे नहीं जाना चाहिए, मतलब सारे लोगों को नहीं दिखना चाहिए. सो दैट टाइम वो यहाँ पे भी वैसे फीचर है, यू कैन सर्च इट ओवर देयर, यू विल गेट टू. तो वो कैसे सेटिंग करना है सर, वो बता सकते हो आप? अब वो कैसे करना है, जैसे कि सपोज आई एम जस्ट हियर यू कैन सी, यहाँ पे ऑप्शन से यू कैन सी वेयर इट इज ऑप्शन. अभी तो
शो करंट कंपनी इन माय इंट्रो, तो दिखाना है Yes. नहीं दिखाना है, दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल टू यू। और लाइक दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन मेंशन। अब जैसे कि कोई प्रोफाइल है, आपने कुछ अपडेट किया, अपडेट करने के बाद वो सीधा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपकी फीड्स पे जाएगा, तो वहां से भी Yes. आप डायरेक्टली आप रिमूव कर सकते हो, लाइक यू कैन रिमूव दैट पार्ट। Okay. ठीक है, सो ठीक है सर। दिस इज हाउ बेसिकली वी कैन क्रिएट एन लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर क्रिएशन हो गया तो इतना हो गया काम? द आंसर इज नो गाइस, द आंसर इज नो। तो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, वी हैव टू ज्वाइन सम कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करना है हमें। अब सर यू माइट हैव क्वेश्चन, सर व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट, लाइक हाउ मेनी पीपल नो अबाउट व्हाई वी आर यूजिंग हैशेस बेसिकली। जब जब हम कोई पोस्ट करते हैं तो वी आर जस्ट एडिंग सब टाइटल ऑन द बिलो ऑफ दैट फोटो कि हैशटैग हैश। तो ये बेसिकली होता क्या है? हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस हैशेस? How many people uses the Twitter? No, sir. सर ये एक्चुअली मेरे ख्याल से हाईलाइट करता है। Okay, all right. No, if you don't know, no need to worry, guys. Listen carefully. Why we are defining the hashes basically? So whenever we are defining, whenever we want to apply some of the job, हमें जॉब चाहिए। मेन रीजन क्या है? Why we are on the LinkedIn? क्योंकि हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें कॉल आने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले कॉल आने के लिए आपको पता चलना चाहिए कि जॉब्स है या नहीं। तो जब जब हमें कोई जॉब अलर्ट्स के लिए अप्लाई करना, मतलब हमें जॉब किसी ने पोस्ट किया और आपको अलर्ट आना चाहिए, सो दैट टाइम यू हैव टू ज्वाइन द कम्युनिटी। अब ये जो कम्युनिटी होती है ये हैशेस से होती है, जैसे कि आई एम जस्ट यूजिंग हैश ऑटोमेशन, ओके, हैश ऑटोमेशन टेस्टिंग, ओके, हैश ऑटोमेशन टेस्टिंग जॉब, ओके, ये मैंने सर्च किया। यहाँ पे मैं जैसे ही गया, you can see guys what exactly happened, ये सबसे पहले ये यहाँ पे आया ऑटोमेशन टेस्टिंग जॉब्स, ये सबसे पहले आया। तो अगर मैंने इसको फॉलो किया, अब मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, तब यहाँ पे जितने ये सी हाउ मेनी फॉलोअर्स बेसिकली वी हैव 299, तो 299 आउट ऑफ 299 किसी ने एक बंदे ने भी ये हैशटैग अप्लाई करके वहां पे पोस्ट डाला, तो आपको सीधा वो पोस्ट आपके फीड्स पे दिखाई देगा। वो सीधा जो पोस्ट है वो आपके फीड्स पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे यू कैन सी, इज ऑटोमेशन टेस्टिंग पॉसिबल विदाउट मैनुअल टेस्टिंग? यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एंड यहाँ पे हैशटैग दे आर यूजिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग जॉब टेस्टिंग इंजीनियर, एंड हियर यू कैन सी दिस इज हाउ बेसिकली यू विल गेट द थिंग। अब यहाँ पे जितने भी फीड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे, यहाँ पे यू कैन सी ऑटोमेशन टेस्टिंग जॉब्स करके ये हैशटैग होगा वो सारी फीड्स में। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज एन ब्यूटी ऑफ दिस जॉब। तो आपको ये जो जॉब अलर्ट से बेसिकली आपको ये जॉब अलर्ट्स आपको अप्लाई करने, मतलब यूज करने, आपको ये सारे जॉब अलर्ट्स यूज करने, आपको ऐड करने, फॉलो करने बेसिकली उनको। क्लियर एवरीवन? और ये लिंक्डइन की भी जो प्रोफाइल है, ये दिन में कम से कम 8 या 10 बार आपको नेविगेट करना है, जहां जहां पे आपको तो यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? No, sir. नो? No, sir. ऑलराइट, ओके, व्हेन दिस इज डन, देन अब आपने ऐसे चैनल्स को फॉलो कर दिया, ठीक है गाइस? ओके, ऐसे अब जो आपके जो एचआरस जो होते हैं, आपके जो कंपनी में जो एचआर जो होते हैं, कंपनी के जो एचआर होते हैं, वो क्या करते हैं, whenever they want to apply some filter, वो डायरेक्टली ऐसे ही फिल्टर अप्लाई करते हैं। ओके, what exactly they are doing, they are also applying the filters over here. Okay, here you can see automation leads job, आप ऐसे भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हो automation lead job and you will get a notification over here, these many like automation lead job basically we have। आपको इस तरह से यहाँ पे भी जॉब्स आएंगे। आपको क्या करना है, जैसे कि सपोज वी हैव दिस कंपनी, लाइक कोई भी कंपनी आप ले सकते हो, जैसे कि यू कैन टेक एन एग्जांपल, ये बार्कलेस का हम एग्जांपल देते हैं। ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू, यहाँ पे भी आप सीधा जॉब अप्लाई कर सकते हो। यू कैन सी गाइस ऑटोमेशन एंड हियर यू कैन सी कंटिन्यू पे करना है आपको, एंड वो आपको सीधा लैंडेड कर जाएगा आपके प्रोफाइल को वहां पे।
एंड वहां पे बेसिकली यू कैन अप्लाई द थिंग्स, लाइक जो भी आपके थिंग्स है वो बेसिकली यू कैन अप्लाई ओवर हियर। यहाँ पे यू कैन सी अप्लाई द जॉब। इस तरह से आप बेसिकली कोई भी जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिंक्डइन। ओके, विद द हेल्प ऑफ द लिंक्डइन यू कैन सिंपली अप्लाई द जॉब्स। इस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन सी गाइस दीज मेनी फिल्टर्स बेसिकली वी हैव। तो जब जब आपके जो एचआरस होते हैं, एचआर को आपको चाहिए होता है कि कोई रिक्रूटमेंट करना होता है एचआर को, तो वो क्या करती है, इस तरह से बेसिकली वो हायर करती है। अभी आपको जॉब चाहिए, सो बेसिकली आप जॉब सर्च करोगे, उनको लोग चाहिए होते, तो वो क्या करते, पीपल सर्च करते। ठीक है, पीपल सर्च करते। कनेक्शन, कनेक्शन अभी जो है फर्स्ट सेकंड लोकेशन, यहाँ पे यू कैन सी गाइस आपका सपोज मुझे पुणे के लोकेशन, पुणे लोकेशन वाले लोग चाहिए। ओके, देन करंट कंपनी, करंट कंपनी अब कोई भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इस तरह से बेसिकली उनको, अब यहाँ पे यू कैन सी गाइस अब मुझे जो ऑटोमेशन वाले जो लोग चाहिए, यहाँ पे यू कैन सी मुझे सारे ऑटोमेशन वाले लोग मिल रहे। तो इस तरह से आपके जो एचआर जो होते हैं आपके प्रोफाइल को फिल्टर आउट करते हैं। इतने सारे ऑटोमेशन लीड वाले, इतने सारे लोग हैं, इतने प्रोफाइल वाले, तो वो क्या करेंगे, सिंपल डायरेक्टली उनके प्रोफाइल पे जाके कनेक्ट करते और मैसेज पोस्ट करते उनको। तो इस तरह से एचआर जो है, एचआर बेसिकली आपको ढूंढते। इसीलिए आपका जो डेजिग्नेशन है ना, डेजिग्नेशन ऑलवेज मैटर्स। जो डेजिग्नेशन जो है वो ऑलवेज मैटर्स गाइस। ओके, तो ये दिस इज हाउ बेसिकली एचआर ढूंढते आपको नौकरी पे, सॉरी लिंक्डइन पे, और आपको वो प्रोफाइल प्रॉपर्ली अपडेट करना होता है। क्लियर सबको? Yes, sir. ओके, ओके। अब वन दिस इज डन, नाउ यू माइट हैव क्वेश्चन, सर हमने नौकरी का प्रोफाइल अपडेट कर दिया, हमने सर हमने नौकरी का प्रोफाइल अपडेट कर दिया, सर हमने लिंक्डइन का भी प्रोफाइल बना दिया, अपडेट कर दिया, सर तो इतना सफिशिएंट होता है क्या? द आंसर इज नो गाइस। आपने सगळे सब कुछ चैनल वगैरह सब कुछ सब्सक्राइब कर दिया, तो सर इज दिस मोर देन इनफ? द आंसर इज नो। आपको इसके आगे क्या करना होता है, जब जब आपको कोई पोस्ट दिखाई देती है लाइक दिस, यू आर ऑब्जर्विंग द सम ऑफ द पोस्ट ओवर हियर, तो आपको क्या करना होता है गाइस, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, आपको कोई तो भी वहां पे ईमेल आईडी बेसिकली दिया होता है। ये ईमेल आईडी शायद से आपके लिंक्डइन पे भी होता है, लिंक्डइन पे नहीं हुआ तो डायरेक्टली उस बंदे को या उस बंदी को आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। एंड इफ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द नौकरी प्रोफाइल, अगर नौकरी प्रोफाइल पे ईमेल होते मोस्टली, क्या एनीवन वांट टू से समथिंग? Anyone want to say something, guys? Does anyone have any question, any query? All right. No, sir. Okay. So what exactly we have to do? अगर आपको ईमेल आईडी मिलता है तो उसको जो है उस बंदे को प्रॉपरली ईमेल आपको शेयर करना पड़ता है। ओके, जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू शेयर यू सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। Just give me a minute, guys. So आपको जब भी पता चल जाता है, am I audible everyone? Yeah. Voice is not clear here. Is it happening, guys? Is my voice is breaking? No, 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 sir. no, sir. It's clear. It's clear, No, na? Okay. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So Ravi Kiran, probably you are having some network issue. You can rejoin this class. Okay, clear, Aris Rao. Okay, great. Nice to hear this. Okay, so
सो सपोज हमें जब जब कोई मिल जाता है, लाइक वी विल गेट एन ईमेल आईडी फ्रॉम द पर्टिकुलर लाइक फ्रॉम द पर्टिकुलर नौकरी जॉब, नौकरी का जो पोस्ट है वहां से, या लिंक्डइन का जो पोस्ट है वहां से अगर हमें प्रॉपरली ईमेल आईडी मिल जाता है तो हमें क्या करना होता है। अब कुछ लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, चलो ईमेल आईडी मिल गया तो अब हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ओके। दे आर सिंपली ओपनिंग दिस पर्टिकुलर लाइक ईमेल आईडी ओपन करते, वो सिर्फ क्या करते हैं, लाइक दिस दे आर जस्ट इंपोर्टिंग द थिंग्स, ओके। और यहाँ पे वो क्या करते हैं, उस एचआर का XYZ ईमेल आईडी डालते, यहाँ पे एप्लीकेशन डालते, रिज्यूम अप्लाई करते और सेंड कर देते। करेक्ट गाइस, ऐसा ही करते हो ना जब कोई अननोन ईमेल आईडी मिलता है, करेक्ट और नॉट? नहीं सर, थोड़ा सा जॉब डिटेल्स। हाँ ठीक है, तो आप ऐसा करते होगे ना, एप्लीकेशन फॉर जॉब, ओके, एप्लीकेशन फॉर जॉब ऐसा आप करते होंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे XYZ जो भी होगा ईमेल आईडी होगा, यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हो आप? सर उनको हेलो वगैरह और बाद में हेलो सर मैम। हेलो, बाद में सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड what skills we have and then interesting field nahi where we work and some like that sir. okay, so what exactly we have to do guys, these many fields basically you have to add। ये जो फील्ड होती है इतने कंप्लीट फील्ड्स यू हैव टू ऐड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल देम कि हु यू आर और आपको उनका कांटेक्ट कहाँ से मिला, दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन। देन आपको उनको बोलना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपको करना है। ओपनिंग्स के बारे में मैंने सुना है तो मेरा आप जो एप्लीकेशन है वो एज अ रेफरेंस आप ले सकते हो। यू हैव टू टेक लाइक ask you some of the permission और आपको उसको उनको रिक्वेस्ट करना है। then once this is done then what exactly you have to do guys, आपको कितना, उसके बाद आपकी प्रोफाइल का शॉर्ट समरी देना है आपको कि आपको कितनी इयर्स का एक्सपीरियंस है, कौन सी टेक्नोलॉजीज पे यूज किया है और आपने क्या क्या कर रहे हो आप, ये सारी चीजें बेसिकली यू हैव टू मेंशन। once this is done वहां पे बिलो आर माय डिटेल्स, जो भी आपका डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो टोटल ईयर एक्सपीरियंस कितना है, नोटिस पीरियड कितना है, करंट लोकेशन कितना है, विलिंग टू रिलोकेट करना है या नहीं, रीजन फॉर लुकिंग चेंज, सिर्फ ये दो चीजें नहीं डालनी है, करंट सीटीसी और एक्सपेक्टेड सीटीसी। क्योंकि आपको एचआर को क्यूरियोसिटी, थोड़ा बहुत तो भी क्यूरियोसिटी देना है उसको कि वो सामने से होके आपको कॉल कर सके। अगर आपने सब कुछ दे दिया उसको तो इट कुड बी चांसेस कि वो मिस कर जाए। तो ये जो मेन पार्ट है, सबसे मेन पार्ट यही पे आता है, करंट सीटीसी और एक्सपेक्टेड सीटीसी, ये दोनों के दोनों विलिंग टू डिस्कस डालना है, ओके। उसके बाद जो आपकी करंट कंपनी है वो है, करंट डेजिग्नेशन क्या होता है, लोकेशन, सारी चीजें बेसिकली यू हैव टू मेंशन। एंड लास्ट में आपका ईमेल आईडी और लिंक्डइन का प्रोफाइल भी यू हैव टू ऐड। ये ऐसा कंप्लीट ईमेल यू हैव टू सेंड जब जब आप कोई एचआर को ईमेल करते हो, जब जब आप कोई एचआर को ईमेल करते हो कंपल्सरी यू हैव टू सेंड दिस ऑल डिटेल्स। Get everyone? Yes sir. है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई द जॉब्स, क्या करना है क्या नहीं, किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? सर क्या बंदा? सर ये नौकरी और लिंक्डइन ये सिर्फ इंडिया के जॉब्स के लिए है क्या सिर्फ? नो, लिंक्डइन और आपके जो नौकरी है, नौकरी पे तो फिलहाल तो आपको सिर्फ इंडिया के लिए आएंगे, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिंक्डइन ऑल ओवर द वर्ल्ड रीचिंग आउट टू यू, मतलब सारे के सारे पूरा जग आपको मतलब आता है। अब जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे यू कैन सी ये जो बंदी है, ये जो है अवनी जावा करके, ये भी ऑनशोर के लिए यहाँ पे ओपनिंग्स थी। ये देखो कैट, ये जो कैट किन थी इसका भी ऑन साइट के लिए जॉब थी। तो लिंक्डइन पे आपको ऑन साइट से भी सारे कॉल्स आते हैं, नो नीड टू वरी, बट ओनली यू हैव टू क्रिएट द प्रोफाइल स्ट्रांगली ओवर हियर, ठीक है। और किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन?
हेलो सर, मैंने ना लिंक्डइन, नौकरी और इंडिन और शाइन.com, तो ये चारों प्लेटफॉर्म पे ऐड किया है सर प्रोफाइल, और हाँ जैसे सेम प्रोफाइल ऐड किया है। Okay. So recently, Prakash sir shared around 20 job portals. So I'm requesting to you, create your profiles on all those 20 job portals, guys. ओके कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है। Okay, okay, आपको कॉल शेड्यूल करवा लेना है आपको, ठीक है। जब जब आपको कोई ईमेल आईडी मिलता है, कहीं से पता चलता है, आपको ईमेल प्रॉपरली शेयर करवाना है। आपको जो मीटिंग है प्रॉपरली, जो आपका इंटरव्यू है प्रॉपरली कंडक्ट करवाना है, मतलब कंडक्ट करवा लेना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे यू कैन सी गाइस, यू विल गेट अ मैसेज इन आवर मीटिंग चैट, यू कैन सी जो यहाँ पे जो दिया है टॉप जॉब पोर्टल्स इन इंडिया, आपको सभी के ऊपर यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका वर्क लोकेशन, मैक्सिमम जो वर्क लोकेशन है आपको टारगेट करना है पुणे, मुंबई, देन बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एंड नोएडा। ये मैक्सिमम वर्क लोकेशन यू हैव टू टारगेट। उसके अलावा भी वर्क लोकेशन जैसे सूरत भी है नाउअडेज, अहमदाबाद है, इंदौर है। इंदौर भी बहुत ग्रोइंग सिटी है, वहां पे भी अच्छा खासा मार्केट बन गया है अभी। वहां पे विप्रो, इन्फोसिस वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियां है। इंदौर का जो मैकेनिकल इंडस्ट्री का जो है, तो एशिया का सबसे बड़ा जो मैकेनिकल इंडस्ट्री इंदौर में एग्जिस्ट करता है। दोज आर फ्रॉम इंदौर, उनको शायद से पता होगा। सो these all are the true fact guys, and just follow whatever I'm telling to you. जो हम बता रहे हैं वही फॉलो करो, you will get a lot of jobs. But again my point over here is guys, जॉब मिलेंगे मतलब इंटरव्यूज के कॉल डेफिनेटली यू विल गेट। आपका पॉइंट है प्रिपरेशन, जितना प्रिपरेशन आपका रहेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके क्लियर? किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन गाइस? Does anyone have any doubt, query, question? No, sir. No, sir. Clear? Yes, sir. सर क्या मयूरी? हम अभी फ्रेशर है तो हमें इंटर्नशिप लेने के लिए दिखानी पड़ेंगी, तो कितनी लेनी चाहिए सर हमें? Which year you passed out, Mayuri? अभी 2022। 2022. Okay. Okay. We will discuss separately on this then. यस 1 year का इंटर्नशिप मोर देन इनफ है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है? Alright. Apart from it, guys, does anyone have any question, any query? Just follow this practice for 2 to 3 months, guys. You will get a lot of calls from market. You will get a lot of calls for the market. The only एक रूल आपको फिक्स ध्यान में रखना है, पहली बार इंटरव्यू दिया, अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं, नो नीड टू वरी।